بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ؟ تو دوستو آج کا جو کلپ ہے وہ ایک فتوے پر ہے جو مولانا ریاض قادری اطاری صاحب نے پیش کیا ہے۔ تو چلیں ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا۔ یہ ڈبل 12 میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارا وہی مکتب فکر بریلوی 24 نمبر وہابی کو کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حروف ابجد جس طرح بسم اللہ کے 786 ہیں، محمد کے 92 ہیں، اللہ کے 66 ہیں، اس طرح وہابی کے جو حروف ابجد ہیں وہ 24 ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جو باپا جانی ہے نا الیاس قادری صاحب، وہ کبھی نہیں بولیں گے کہ 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزارے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں ڈبل 12 گھنٹوں کی زندگی۔ اچھا، وہ ڈبل 12 صرف 12 کی نسبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ 24 نمبر کو ہی اپنے لیے ایک ان لکی نمبر سمجھتے ہیں۔ جس طرح امریکن جو ہے وہ 13 نمبر کو ان لکی سمجھتے ہیں، تو وہ ڈبل 12 بولیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی گدھ کے جو حروف ابجد ہیں وہ بھی 24 ہے اور وہابی کے بھی 24 ہے۔ جس طرح گدھ جو ہے نا یہ گوشت خور ہے نا، وہابی ایمان خور ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ ہیں، وہابی بھی ایمان خور ہیں، بریلوی بھی ایمان خور ہیں، دیوبندی بھی ایمان خور ہیں، شیعہ بھی ایمان خور ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کر لی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بھی بابوں کے ساتھ لگ گیا ہوا ہے نا اور نبی علیہ السلام کی بات کو اس نے پس پش ڈال دیا، وہ سب کے سب گدھے ہی ہیں، ایمان خور ہی ہیں۔ تو ہمارا سٹیٹس تو آپ کو کلیئر ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں۔ ہم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے آپ کے ایک ادنا سے مجاہد ہیں جو چیخ چیخ کے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا، جی یہ آپ نے شعر کیسا کہہ دیا ہے، جی ساروں کا خدا ایک ہے۔ اور بھائی لٹریچر میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے۔ اور میں نے جب پہلی دفعہ یہ سلوگن بلند کیا تھا نا مجلس نمبر 100 میں، اس میں بھی میں نے کلیئر کیا تھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے فرقوں کا ایک خدا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہندو، کرسچنز، جیوز، بدھسٹ سب کا ہی ایک خدا ہے۔ لیکن جب ہم انہیں سمجھائیں گے تو انہیں بتائیں گے کہ بھائی ایک وہ خدا ہے جو کتابوں میں آیا اور ایک وہ ہے جو تمہارے بابوں نے بتایا، کوالٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو انہیں پھر اعلیٰ حضرت کی ہی زبان سمجھ آتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے، وہابیوں کے خلاف۔ وہ ایک وہابی عالم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس کے رد میں انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی بھی غلط چیز اللہ کی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی گندی چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں محال ہیں، اور جو چیزیں محال ہیں وہ کبھی بھی مقدور نہیں ہو سکتی، یعنی ان کو آپ قدرت میں داخل نہیں کریں گے۔ مثلا کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا کوئی اور بنا لے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ کوسچن ہی انویلڈ ہے، یہ محال ہے، کیونکہ خدا کی، الہ کی، اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بنائے گا بھی نہ تو وہ مخلوق ہوگا۔ اگر اب آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا، وہ کہیں گے دیکھیں جی قدرت کی نفی کر دی، اور اگر کہیں کہ بنا سکتا ہے تو کہتے ہیں پھر توحید سٹیک پہ لگ جائے گی۔ تو اس کا جواب دونوں طرف نہیں جاتا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محال ہے۔ بائی ڈیفینیشن خدا ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اور خدا بنانے پر قادر ہے یا نہیں ہے یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ یہ چیز خود محال ہے، لہٰذا اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آپ نے داخل نہیں کرنا۔ تو وہ جواب دیتے ہوئے پھر اعلیٰ حضرت نے وہابیوں کا خدا لکھ کے فتاوی رضویہ کے اندر بھی اور اس کتاب کے اندر بھی وہ گالیاں نکالی ہے، یعنی ایسی غلیظ زبان استعمال کی ہے کہ وہابیوں کا خدا چور ہے، نعوذ باللہ، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ زانی ہے، وہابیوں کا خدا فلاں ہے، اتنی غلیظ باتیں لکھی ہیں۔ اب ان سے پوچھو کہ مجھے تو تم کہتے ہو کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور، میں تو ایکسپلینیشن بھی دے رہا ہوں، تمہارا اعلیٰ حضرت تو گالیاں نکال کے گیا ہے اور اس نے لفظ استعمال کیا وہابیوں کا خدا، اور وہ گالیاں دی، ہم نے تو کبھی گالی نہیں دی، اور ہم لٹریچر کی زبان میں اسے ایکسپلین بھی کر رہے ہیں۔ تو اب کس کس چیز کا رونا روئے ہم؟ یہ 2-4 دن پہلے وہ باپا جانی کا ایک کلپ وہ دوبارہ سے میری نظروں سے گزرا، کسی نے اپلوڈ کیا ہوا تھا، تو اس سے مجھے کلک ہوا، میں نے کہا چلیں اس اتوار کو میں اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کرتا ہوں۔ اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بد مذہب جو ہے نا، بد مذہب یعنی بد مذہب سے مراد ہے ادر دین بریلوی، اس کا کلپ سننا حرام حرام اور سخت حرام ہے۔ یہ کان کھول کے سن لیں، بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام، اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام۔ میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگ جیسے تو کام فون میں گھس گیا، یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، اور گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے۔ کیوں سنا؟
कान बेरे होने चाहिए। ये जहां जहां सुन रहे हैं, अब तक अगर ऐसा धंधा किया ना, आपने किसी बदमज़हब का क्लिप सुना है और फॉरवर्ड किया, इससे तौबा करें। जिन जिनको भेजा उनको अपनी तौबा पर मुत्तला करना होगा और उनसे भी तौबा का मुतालबा करें। तौबा वाजिब होगी इन पर, बिल्कुल वाजिब है तौबा। और फिर इस पे उन्होंने इक्तफा नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर मेरे मोबाइल में इस किस्म का कोई क्लिप आ जाए तो ये मेरा काम है कि मैं अगर इसका सड़ा हुआ चेहरा देखूं। किसका सड़ा हुआ चेहरा? यानी अपने सिवा तमाम मौलवियों को वो सड़ा हुआ चेहरा, ठीक है, ये मीठे मीठे इस्लामी भाई हैं जो इतने कड़वे कड़वे हैं, तो मैं फौरन उसे वहीं पे डिलीट कर दूं। और उन्होंने कहा आज तक जिन्होंने आगे ये क्लिप फॉरवर्ड किए ना दूसरे फिरकों के उलमा के, तो वो तौबा करेंगे उसके ऊपर। अब ये है मयार इन लोगों का। तो भाई ये आपकी गुमराही के लिए, आपकी इल्मी कमजोरी के लिए काफी है कि आप किसी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने तो कभी नहीं कहा कि आपने दूसरे की बात नहीं सुननी, बल्कि हम तो खुश होते हैं जब दूसरा कोई मिसबाई साहब जैसा कोई क्लिप बना देता है तो हम पब्लिक को बताते हैं कि भाई ये इन लोगों का इल्मी लेवल है। तो जो बापा जानी है, हमारे एक्स मुर्शिद भी हैं मौलाना इलियास कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो उनका वो क्लिप मुझे क्लिक कर गया, उनका क्लिप मुझे क्लिक कर गया कि मैं इसको टॉपिक बना के आपके सामने रखूं कि इन्होंने जो मयार सेट किया है गुस्ताखी का, इनके रूह से तो कुरान हकीम में फिर सैकड़ों आयात गुस्ताखी के ऊपर ही मबनी है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हालांकि वो आयात इसलिए नाजिल नहीं हुई हैं कि उनको बुनियाद बनाकर कोई शख्स गुस्ताखी करे। बेसिकली ये तमाम आयात जिनमें अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त अंदाज में गुफ्तगू की है, ये आयात ये जस्टिफाई करती हैं कि ये किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं लिखी, वरना जिस लहजे में वो गुफ्तगू है, कोई शख्स अगर इस किताब का राइटर खुद है तो वो अपने बारे में इस तरह की बात नहीं लिख सकता। ये सबसे बड़ा जो सबूत है चंद सबूतों में से कि ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिखा बल्कि अल्लाह ने उनके ऊपर नाजिल किया, उस सबूत में ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम काफिरों को भी पेश करते हैं कि देखो कोई शख्स आम बंदा भी किताब लिखे तो वो इस तरह की लैंग्वेज अपने बारे में इस्तेमाल नहीं करता। ये इस बात का सबूत है कि ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब खुद नहीं लिखी और ना उनका इस किताब के हवाले से कोई इख्तियार था। ये अल्लाह ताला ने जो कुछ उन्हें वही फरमाया वो उन्होंने मिन्नों उसी तरीके से आगे पहुंचा दिया। ये आयत इस हवाले से हमें गाइड करती हैं। इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि रबीउल अव्वल शरीफ का गिफ्ट इन्हें शुरू में ये मिल जाए इन आयत की शक्ल में, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ मशहूर किया जी। वो एक हजरत उमर के जमाने में कोई इमाम मस्जिद था तो वो रोजाना फजर की नमाज में पढ़ता था अबसा व तवल्ला, तो हजरत उमर ने उसको कत्ल करवा दिया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जैसा डिसेंट आदमी इस किस्म की झूठी रवायतें पेश करता है, यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपने कुरान नहीं पढ़ना। बारे शरीयत के अंदर स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा है कि कुरान हकीम में जिन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ऊपर गिरफ्त की है ना, ऐसी आयात की सिर्फ आप अरबी पढ़ेंगे इनका दर्स देना भी हराम है। यानी वो बताना चाह रहे हैं कुरान पढ़ना ही हराम है। जबकि किस्सा आदम और इब्लीस जो 7 दफा कुरान में आया उसमें सबसे ज्यादा डिटेल में है सूरतुल आराफ के अंदर। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने किस्सा आदम और इब्लीस ए औलाद आदम तुमसे इसलिए बयान किया कि जिस तरह तुम्हारे मां बाप को शैतान ने वर्गला दिया था कि तुम्हें ना बहका दे। अल्लाह ताला तो कह रहा है ये वाकयात मैं इसलिए बयान कर रहा हूं कि इनसे इबरत हासिल करनी है, और ये कहते हैं इनका दर्स देना ही हराम है। तो आगे इन्होंने कुरान कहां से पढ़ना है? और फिर कहानियां बनाई नहीं है। वो जी एक दफा एक वाबी का और एक बरेलवी का मुनाजरा हो गया। अच्छा जी क्या होया फिर? वो कहता जी वाबी पूरी रात जो है ना वो नबी इस्लाम की तनकीस वाली आयत तलाश करता रहा, और लानत है तेरे अकीदे के ऊपर अगर तेरा ये अकीदा है कि कुरान में कोई आयत ऐसी है जिसमें नबी की तनकीस हुई हुई है। डूब मर कि तुझे ये पता ही नहीं है कि कुरान जो है वो अल्लाह का फरमान है अपनी मखलूक की तरफ, ना कि पैरेलल में कोई पैगंबर मिनी गॉड है कि जिसकी तरफ ये पैगाम आया है। वो उसे तनकीस समझते हैं, यानी अल्लाह इनसे पूछ के बात करेगा अपने पैगंबर से करेगा तो। और जो बरेलवी था वो पूरी रात जो है वो नबी इस्लाम की शान तलाश करता रहा। भाई नबी इस्लाम की शान से किसे इनकार है? कोई मुसलमान जानबूझ के गुस्ताखे रसूल हो सकता है? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, हाँ बोला ना तेन समझ आएगा। कहते नहीं साढ़े बाबे किस तरह गुस्ताख हो सकते हैं? हाँ थानवी रसूलुल्लाह कल तक गलत सी, चिश्ती रसूलुल्लाह कल तक ठीक सी, आज गलत हो गया मेरी वजह नाल। ओए पै गया जे तोड़े बाबे नूं, ओए पै गया जे ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਿੱਪ ਓਏ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਓਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇਖ ਰਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, निकलो बाहर। सटाई पर बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं, मुझे बताएंगे तमाशा करते हो? फिर कहते हैं मसलक का काम नहीं होता, मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो। और जरा ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆ निकलो बाहर। पै गया, बिल्कुल पै गया मैं। थोड़ी बादशाही की थी तो ना देख लो 1200 साल में जो इज्जत इन्होंने कमाई थी इन 12 सालों में, किस तरह एक नारा इन्हें ले
डूबा है अल्लाह के फजल से। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं, नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे थे शे ही कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इन्होंने ना ढकोसला मचाया हुआ है इस किस्म की बातें। और ये मैं इसलिए करूं कि मैं खुद 31 साल तक बरेलवी रहा हूं। ये सारी कहानियां हमने अल्लाह के फजल से, या कह लें कि अल्लाह के गजब से, अपने उलमा से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से बचपन से ही सीख ली हुई थी। 31 साल तक मैं भी बरेलवी रहा हूं, तो इसलिए हमसे कोई बात छुपी भी नहीं है कि ये कौन कौन सी शैतानत है जिसके जरिए ये हमलावर होते हैं मुसलमानों के अकायद के ऊपर। क्योंकि इसलिए तो हमने अर्ज किया है कि वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे। आज हम द्यो हैं, जिन्नों के भी प्यो है, बल्कि द्यो के भी प्यो है। ए द्यो बंद ला द्यो, ए प्यो वाला नहीं जे, वो ना समझियो। जैसा कहते हैं ना कि उस्ताद रूहानी बाप होता है, तो ये रूहानी प्यो वाली बात कर ले। हाँ, ये वो वाली है, बिगॉटन वाली नहीं बात कर रहा मैं। तो इसलिए कुरान हकीम के हवाले से अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर लें। हमारे पल्ले अगर कोई शय है ना, तो वो यही किताब है। नबी इस्लाम की वफात के बाद आपका वसी, आपका खलीफा इस उम्मत पर क़यामत तक के लिए जो आप पेश कर सकते हैं, वो अल्लाह की किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि नबी इस्लाम के बाद जो शख्सियात भी थी वो भी दुनिया से चली गई हैं। किसी को आज पेश नहीं आप कर सकते, पेश कर सकते हैं तो किताब और सुन्नत को। तो अगर ये कुरान हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमारे अकीदे कुरान के खिलाफ है तो समझ ले कि हम गुमराही के ऊपर हैं। अगर कोई बात कुरान में हमारे अकीदे के खिलाफ है तो समझ लें हमारा अकीदा खराब है। कुरान तो बिल्कुल ठीक है। कुरान के सामने आपने स्टूडेंट की हैसियत से बैठना है, ना कि इसके उस्ताद बन के जी गुस्ताखी होती है, इतनी बयान करनी चाहिए थी। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि कुरान इस काबिल ही नहीं है कि इससे लोग हिदायत हासिल करें। तो फिर कल आप किस मुंह से इसको पेश करेंगे किसी गैर मुस्लिम को? असल में खुद उनका गेर उल्टा लगा हुआ है। अल्लाह ने तो बिल्कुल वाज़ेह फरमा दिया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। एक सूरत में 4 दफा ये आयत आई है। फिर भी मौलवी को यकीन नहीं आ रहा। मौलवी कह रहा है डायरेक्ट कुरान पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे। अच्छा, ये कहां लिखा हुआ है कि डायरेक्ट कुरान पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे? कुरान में ये तो लिखा हुआ है कि समझने के लिए आसान कर दिया, नसीहत के लिए। बाकी ये ठीक है कि जो 1000 से ज्यादा आयत हैं वो उलमा को, मुफ्ती आजम को भी नहीं आती हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स के रिलेटेड है। वो आपको कोई साइंटिस्ट ही बताएगा, कोई गोरा ही बताएगा। ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है कि नहीं आती। हाँ, आपने निकाह तलाक के मसले पूछे हैं, मौलवी से पूछे, लेकिन जो नसीहत है ना, वो एक अनपढ़ को भी समझ आएगी, एक पढ़े लिखे को भी समझ आएगी, एक डॉक्टर को भी समझ आएगी, एक इंजीनियर को भी, एक रेडीबान को भी। और वही कुरान का बुनियादी मकसद है, नसीहत हासिल करना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। बेशक इस नसीहत और जिक्र कुरान को हमने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो कुरान नसीहत के लिए आसान कर दिया गया। बाकी ये ठीक है कि साइंटिफिक फैक्ट्स तो उलमा को भी नहीं पता, तो क्या हम उलमा को जाहिल कहेंगे? नहीं, ठीक है। वो एम्ब्रियोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड जो चीज है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, वो उन एक्सपर्ट से पूछे। निकाह तलाक के मसले आप इनसे पूछें, और सारे मसले अगर पूछने हैं ना तो जेल में तशरीफ है इंशाअल्लाह ताला। सही मसले भी बताएंगे, गलत मसले भी बताएंगे, और गलत मसलों का जवाब भी बताएंगे। तो ये 12 आयात मैंने सिलेक्ट की हैं। वैसे तो मतलब बहुत ज्यादा आयात हो सकती थी, लेकिन ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ की निस्बत से मैंने कहा चलें इस साल ये तोहफा दे दें 12 आयात का। और आखिरी बात मैं इस हवाले से कर दूं, जो कई एक वीडियोस में मैंने की है, कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीबीसी या CNN के ऊपर कोई पट्टी चले टिकर के तौर पर, और अफ्रीका का रहने वाला इंसान उसका कोई और मतलब ले ले, मलेशिया का इंसान कोई और मतलब ले ले, पाकिस्तान का रहने वाला इंसान कोई और मतलब ले, सारे एक ही मतलब लेते हैं। जब कुरान की बारी आती है तो ये लोग कितने बेईमान है, कहते हैं ना कि वो तर्जमे चेंज हो गए ना जी। क्यों? अरबी क्या मुर्दा जुबान है? आज भी 1.5 करोड़ क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो बाय बर्थ क्रिश्चियन है और उनकी जुबान अरबी है। जाए उनसे जाके तर्जमा करवा लें। अरबी को मुर्दा जुबान है भाई। अल्फाज के चुनाव का तो फर्क होगा। कोई तर्जमा करेगा अल्लाह के नाम से शुरू, कोई करेगा शुरू अल्लाह के नाम से, कोई करेगा शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। देन व्हाट? कोई तर्जमा चेंज हो गया? 10 सहाबा इकराम भी होना जिन्हें अंग्रेजी और उर्दू आती हो, उन्हें भी आप कुरान का एक सफा देना, एक जैसा तर्जमा वो भी नहीं करेंगे। हाँ, बिल मफहूम एक जैसा होगा, क्योंकि अल्फाज के चुनाव का फर्क होता है। एक जुबान जब दूसरे में ट्रांसलेट होती है तो अल्फाज के चुनाव का फर्क हो सकता है, मफहूम नहीं बदल सकता। सब अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे, सबके सब जब तर्जमा करेंगे तो शैतान के अगेंस्ट अल्लाह की गुनाह मांगेंगे। ये नहीं है कि वो शैतान की गुनाह मांग रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये बेसिकली गैर महसूस तरीके से इन्होंने कुरान से दूर किया, और मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने हीले बहाने गढ़े। वो मैं ये पिछले दिनों जो गुस्ताखी हुई थी ना स्वीडन के अंदर, तो उसके ऊपर जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी ना, वो आप देख लें। उसमें जितने कुरान से इन्होंने धोखे दिए ना कि कुरान तो गुमराह कर देता है जी, गधे पे भी किताबें ला दें तो ये हो जाता है जी, वो हो जाता है, ये सारी बातें मैं कर चुका हूं, वरना मुझे 1 घंटा और लग जाएगा। वो स्वीडन वाली जो वीडियो है ना मेरी कुरान हकीम की गुस्ताखी के हवाले से, वो आप देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।